Good morning. Today we will start the new chapter, The Human Eye and Colorful World. In the previous chapter, we was study in the detail the human eye. Okay, in this chapter, we will study in details about the human eye. Okay, so light is one of the most important form of the energy available to us on the earth. Okay, the biggest light of the source on the earth is sun. And in the last chapter we have studies the light is a small part of the electromagnetic spectrum. Okay, here is a diagram of spectrum of light in which you can easily see X-ray, UV ray, infrared, microwaves or the radio waves. Okay, the human eye are able to see only the six color. Okay, uh, 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 human eye can't differentiate between the blue and indigo color, therefore our eyes can be seen only six color. And now the human eye structure and the function. uh, Eyes are the organ that are enabled to see the object around us. um, all the optic instruments make use of the lenses. So the eye is a wonderful gift of God to mankind, is perhaps the most perfect optical instrument known to mankind. Okay, so um, eyes are also called the photoreceptor organ. eye eye functions just like a camera. The structure of the eye. The eye is the organ that allow us to see the world around us. Okay, it is perhaps the most wonderful and the perfect optical instrument. Without eye, all the optical instruments would not have no value at all. Okay, the main part of the human eye are cornea, iris, pupil, aqueous humor, optic nerves, a blind spot, retina, and ciliary muscles. And the human eye is a dark spherical chamber filled with a transparent fluid. Is consists of an eyeball having a diameter is about 25 mm. The wall of the eyeball consists of two major layers. The outer covering is known as sclerotic layer. It is tough, opaque, white substance. It forms the white portion of the eye. जो ह्यूमन आई है ये एक स्फेरिकल चैम्बर होता है जिसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा होता है और इसका डायमीटर अबाउट 25 mm होता है और इसकी वॉल जो होती है आई ये दो लेयर से मिलके बनी होती है। जो बाहर की लेयर होती है उसको स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं। ये टफ होती है, ओपेक होती है। ओपेक मीन्स दैट not allowed to enter the light. Okay, the substance which do not allow the light is known as opaque substance. So opaque white substance it form the white portion of the eye. ये जो आँख का सफ़ेद वाला हिस्सा है ये स्क्लेरोटिक लेयर जो होती हैं ये इनको बनाती हैं. The front of this coating form a curved section is known as cornea. और इसके जो सामने वाला हिस्सा होता है जो बल्बी हिस्सा होता है उसको जो हम लोग कर्व्ड होता है उसको हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं.
इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ये एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का बना होता है, एंड इज़ बल्गिंग आउटवर्ड्स, ये बाहर की तरफ थोड़ा निकला हुआ होता है। द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंटर द आई थ्रू द कॉर्निया, और कॉर्निया के थ्रू जो होती है वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आँख के अंदर इंटर करती है, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया। और अगर हम लोग कॉर्निया के जस्ट बिहाइंड की तरफ बात करें तो उसके पीछे जो होती है वो कॉर्निया के पीछे आइरिस होती है। जस्ट पीछे जो होती है वो आइरिस होती है। लेंस पहले पीपल वाला पढ़ा दे, आइरिस। ओके, बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस। आइरिस मीन्स जो कलर्ड हिस्सा है इसका जो होता है। द कलर ऑफ द आइरिस इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अलग अलग आँख की जो आइरिस का कलर होता है, आँख का कलर जैसे बोलते हैं, वो यही डिपेंड करता है इसी के ऊपर। और इसमें जो कलर अलग अलग होते हैं, डिफरेंट अलग अलग होते हैं, उसकी मेन कारण होता है कि इनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो आई के कलर को डिटरमिन करते हैं। देयर इज़ अ होल इन द मिडिल ऑफ द आइरिस, आइरिस के बीच में एक होल होता है विच इज़ कॉल्ड द प्यूपिल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल के नाम से जानते हैं। ओके, अब इसके हम लोग बिहाइंड द पीपल, अगर हम लोग पीपल और आइरिस के पीछे जाएं तो अब लेंस आएगा, इसके पीछे जो आता है वो लेंस आएगा। लेंस बिहाइंड द पीपल एंड आइरिस इज़ द आई लेंस, उसके पीछे जो आती है वो आई लेंस आता है। इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है विच इज़ मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड द फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक अ जेली मेड ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का बना हुआ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। द आई लेंस इज केप्ट इन इट्स पोजिशन बाय द स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फ्रेम मेड अ सिलियरी मसल्स, और इसमें जो लेंस को अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं जिनको हम लोग सिलियरी मसल्स के नाम से जानते हैं। The focal length of a eye lens can be changed by the action of ciliary muscles, और ciliary muscles के जो एक्शन के कारण इसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज होती रहती है। Here is a picture of eyes, ये कॉर्निया बल्बिंग वाला है, और जो उसके बीच में जो प्यूपिल है, फिर लेंस है, आइरिस, सिलियरी मसल से ये लेंस बंधे हुए हैं। द स्क्रीन ऑफ द आई बॉल वेयर द इमेज इज ऑब्जेक्ट्स आर फॉर्म इज कॉल्ड रेटिना, ये जो पीछे वाला हिस्सा है और ये रेटिना कहलाता है। और ये रेटिना हिस्सा ही वो हिस्सा है जहाँ पर कि किसी भी वस्तु का ऑब्जेक्ट का इमेज बनती है। It is located behind the eye lens at the back portion of the eye. Okay, the retina is a highly sensitive surface made up of nerves, rods and cones. Okay, और ये बहुत सेंसिटिव हिस्सा है हमारी आँख का, पिछला हिस्सा है जहाँ पर कि इमेज बनती है, और ये बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि यही वो हिस्सा है जहाँ पर कि नर्व्स, रॉड और कोन्स जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। एंड इट इज़ कम्युनिकेटेड विद द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स, और ये ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू दिमाग तक ये अपनी बातों को पहुंचाते रहते हैं, ये सिलियरी मसल्स। ओके, नाउ जो रेटिना है ये बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है और इसमें ही ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो ब्रेन तक जाती हैं। नाउ टुडे योर टॉपिक इज कंप्लीटेड। ओके।